Hello and welcome. Welcome to learning session number 5 of chapter number 2, which is life processes in living organisms part 1. So far in this chapter, we have seen introduction. We have revised key topics from our previous classes related to this chapter. Then we saw aerobic and anaerobic respiration. So in aerobic respiration, what does it mean? It means air के presence में जो respiration होता है, okay? So in the presence of air means in the presence of oxygen, and it has 3 steps. First step is glycolysis, second step is Krebs cycle, third step is electron transfer chain reaction, right? Then anaerobic, anaerobic यानी aerobic का उल्टा, एरोबिक के पहले एन लगा दो तो एन एरोबिक हो जाएगा. सो एनएरोबिक मींस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी जब ऑक्सीजन नहीं होगा तब रेस्पिरेशन जो होता है उसको बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन. हियर वी हैव two steps. First step is glycolysis, same as in aerobic respiration, and the second step is fermentation. Okay, then in the last learning session we had started looking at this topic called how do we get energy from different food components. Okay, so we had seen proteins and carbohydrates in detail. So in today's learning session we're going to see the same topic. We're going to continue the same topic and we'll see lipids, vitamins, water and fibers in detail. Okay, the word we're going to learn today is heterogeneous. Okay, heterogeneous. I would again, for you all to make a pronunciation correct, repeat this word after me while you're watching the video. Okay, heterogeneous, heterogeneous. Okay. So as I said, first topic we're going to see is lipids, right? So the first point in lipids is the substances formed by specific chemical bond between fatty acids and alcohol are called lipids. So lipids कैसे बनते हैं? It is formed by specific chemical bond. किसके बीच में chemical bond? Fatty acids और alcohol. इन दोनों के बीच में अगर specific chemical bond बन गया तो उससे क्या बनेगा? Lipids बनेंगे. Okay. Lipids are converted into fatty acids and alcohol during digestion. So digestion में उल्टा हो जाएगा. Lipids कैसे फॉर्म होते हैं? By forming bonds between fatty acids and alcohol. तो जब डाइजेशन होगा तो डाइजेशन में वो जो लिपिड्स बन गया था वो वापस फैटी एसिड्स और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, fatty acids are absorbed up and distributed everywhere within the body. Fatty acids को फिर बाद में absorb कर लिया जाता है हमारे बॉडी में and it is distributed throughout our body. From these fatty acids, different cells produce various substances necessary for themselves. तो fatty acid एक बार absorb हो गया, पूरे बॉडी तक पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा? fatty acids को यूज करके सारे सेल्स अपने आप के लिए जो कुछ भी important substances है वो खुद के लिए बना लेंगे. Okay, so that's the meaning of the last line. From those fatty acids, different cells produce various substances necessary for themselves. And last point is an example on this slide. Example, the molecule called phospholipids. Okay, so PHOS, phos, PHO, pho, LIPIDS, lipids, phospholipids. So the molecules called phospholipids, which are essential for producing plasma membrane, are formed from fatty acids. So प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोलिपिड्स, वो फैटी एसिड से बनता है. ओके, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कैसे फैटी एसिड से जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस सेल्स को लगेंगे वो बना लेते हैं. ओके, नेक्स्ट, इन फैटी एसिड्स इटसेल्फ, फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन एटसेट्रा. ओके, ये सब क्या है? ये नाम्स किसके? ये सारे नाम हार्मोन्स के. ओके, अलग अलग हार्मोन्स. व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर बेसिकली केमिकल्स इन आवर बॉडी. सो ये अलग अलग टाइप्स के हार्मोन्स बनाने के लिए भी यूज होते हैं फैटी एसिड्स. एंड कवरिंग अराउंड एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल्स भी फैटी एसिड से बनते हैं. सो आई हैव पुट अ diagram of a neuron over here. So neuron we have studied in detail in the last grade, right? 9th standard में. So if you all remember, ये बाहर के जो पार्ट होते हैं वो डेंड्राइट्स होते हैं, बीच में एक न्यूक्लियस होता है, फिर एक लंबा सा एक्सन होता है, और यहाँ पे वापस नर्व एंडिंग होती है, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, राइट? दिस आर कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल. सो ये
ये जो लंबा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सॉन. तो एक्सॉन का जो कवरिंग होता है दैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम फैटी एसिड्स. ओके, सो दे वर जस्ट ट्राइंग टू गिव एग्जांपल्स फैटी एसिड से क्या क्या बनता है. सो देयर आर सम हार्मोन्स सच एज प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन. अगेन ऑल दीज आर नेम्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स. उसमें यूज होता है एंड एक्सॉन्स के कवरिंग में यूज होता है. किसके? नर्व सेल्स में जो एक्सॉन होता है उसका. Next, we get 9 kilocalories of energy per gram of lipids. So again, important number to note, important thing to note for your objective type of questions. Okay, so we get 9 kilocalories of energy per gram of lipids. Next, excess of lipids is stored in adipose connective tissue. Okay, I'll wait for that black bar to go. Okay, excess of lipids are stored in adipose connective tissue. So adipose connective tissue हम लोग ने देखा था, right? 9th standard में we had seen so many different types of connective tissue. We had learned that blood is a connective tissue. We had seen tendons, etc., etc. So we had seen many connective tissues. So उसमें जो adipose connective tissue है, उसमें excess lipids store होते हैं. Okay, another fact to remember for objective type questions. Fill in the blanks के लिए, name the following के लिए. Okay. So there is a can you recall type of question on page number 16. The question asks from where do we obtain lipids. Okay, lipids कहाँ से मिलता है, किस टाइप का खाना खाओगे तो उसमें lipids मिलेगा. So take some time to think about the answer. Okay, I'll wait for 5 seconds for you to think about the answer. किस टाइप के खाने में lipids होंगे. Okay, I hope you all had the time to think about कौन से फूड टाइप्स में लिपिड्स हो सकते हैं. तो लिपिड्स बेसिकली क्या है, फैटी एसिड्स होता है ना उसमें. सो फैटी एसिड्स किस में होंगे. सो अगर ये तुम लोग ने कनेक्शन बना लिया होता खुद से तो तुम लोग को आंसर आ जाता. सो बेसिकली एग्जांपल्स क्या है, ऑयल, घी, बटर, नट्स. यहाँ पे डिश लिखा है मैंने, इट्स नॉट डिश, इट्स फिश. ओके, दिस इज नॉट डिश, दिस इज फिश. सो नट्स, फिश, मीट, एटसेट्रा. सो इन सब फूड आइटम्स में लिपिड्स होते हैं. सो जहां पे भी फैटी एसिड्स होंगे जनरली यू विल फाइंड लिपिड्स. ओके, जिसमें भी फैट बहुत ज्यादा होगा. ओके, नेक्स्ट वी आर सीइंग विटामिन्स. सो विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड. सो हेट्रोजीनियस ये वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है. हेट्रोजीनियस यानी बहुत अलग अलग. ओके, बहुत अलग अलग टाइप्स के. सो इफ आई से हमारे क्लास में हमारा क्लास जो बना है वो हेट्रोजीनियस मार्क्स है सबके. हेट्रोजीनियस मार्क्स यानी सबके अलग अलग मार्क्स है. कोई किसी को 95 मिल रहे हैं, 97 मिल रहा है, किसी को 5 मार्क्स मिल रहे हैं, किसी को 10 मार्क्स मिल रहे हैं, किसी को 15, 20. सो हर अलग अलग टाइप के मार्क्स वाले स्टूडेंट्स मेरे क्लास में है. ओके, अगर इसका ऑपोजिट क्या है, होमोजेनियस. होमोजेनियस यानी सब सेम होना. सो इफ आई से इन माय क्लास ऑल द स्टूडेंट्स हैव होमोजेनियस मार्क्स. सो यानी सबको अराउंड 60-70% है. किसी को भी 10-15 मार्क्स नहीं है, या फिर किसी को भी 90% मार्क्स नहीं है, सबको ऑलमोस्ट सेम है. ओके, तो इट इज होमोजेनियस. होमोजेनियस यानी सब कुछ सेम. हेटेरोजेनियस यानी बहुत अलग अलग होना. ओके, सो विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनियस कंपाउंड्स. यानी विटामिन्स के जो कंपाउंड्स हैं बहुत अलग अलग होंगे. ऑफ विच each is essential for proper operation of various processes in the body. So हर टाइप का अलग अलग. सो विटामिन्स के जो कंपाउंड्स है बहुत अलग अलग टाइप्स के, बट हर एक कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट होता है उसका जो कुछ भी काम है उसको करने के लिए. ओके, इट इज एसेंशियल बोला, एसेंशियल एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो देयर आर 6 मेन टाइप्स ऑफ विटामिन्स और उसके एग्जांपल्स है ए, बी, सी, डी, ई. और वो लोग ने एफ स्किप कर दिया और सीधा के ले लिया. सो ये सब कुछ लाइन में ए, बी, सी, डी, ई, एफ बोलने के बजाय वो लोग ने के बोल दिया उस नए विटामिन को. ओके, सो दिस इज अ वे आई रिमेम्बर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स कि ए से लेके ई तक सब लाइन में बोलो, एंड में एफ के जगह पे के बोल दो. ओके, सो आउट ऑफ दीज ए, डी, ई, के, दीज आर फैट सॉल्युबल. फैट का मतलब तुम लोग को पता है, राइट? बट व्हाट इज सॉल्युबल? सॉल्युबल का मतलब है मिक्स होना. ओके, सॉल्युबल मतलब मिक्स होना. सो फैट सॉल्युबल यानी फैट के अंदर ये मिक्स हो जाते हैं. क्या, कौन से विटामिन? ए, डी, ई एंड के. ये 4 विटामिन के कंपाउंड्स फैट के अंदर मिक्स हो जाते हैं. वेयर बचे कौन से? अभी बी एंड सी. सो बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल, ये पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं. सो दिस इज अनदर फैक्ट टू रिमेंबर फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. We had seen that FADH twice and NADH twice are produced in processes like glycolysis and Krebs cycle. So हम लोग ने aerobic respiration में देखा था, right? Krebs cycle के end में क्या मिलता है हमें मिलता है FADH twice और NADH twice. ये दो चीजें मिलती है और इनके बीच में फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होता है. सो विटामिन लाइक राइबोफ्लाविन, जो जिसको बोलते हैं विटामिन B2, और
निकोटिनामाइड विच इज विटामिन B5। तो ये जो विटामिन है दो टाइप्स के, राइबोफ्लाविन और निकोटिनामाइड, ये लोग काफी इंपॉर्टेंट है इन विटामिन इन दो कंपाउंड्स को बनने के लिए। ओके, सो विटामिन B2 एंड विटामिन B5 जिनका नाम है राइबोफ्लाविन और निकोटिनामाइड, दे आर नेसेसरी फॉर दैट प्रोडक्शन। किसके प्रोडक्शन के लिए? FADH ट्वाइस और NADH ट्वाइस, इन दोनों के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये दो कंपाउंड्स बनेंगे तभी हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, राइट, ATP के फॉर्म में यूजिंग रेस्पिरेशन, वरना हमारी बॉडी को एनर्जी फॉर्म नहीं कर हमारी बॉडी एनर्जी फॉर्म नहीं कर पाएगी। सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू विटामिन्स, विटामिन B2 एंड विटामिन B5। Okay, next we are looking at water. So there is 65 to 70% water in our body. तो हमारी बॉडी आधे से ज्यादा पानी से ही बनी है। ओके, ईच सेल कंटेन्स 70% वाटर बाय वेट। तो अगर तुम लोग बॉडी का कोई भी सेल ले लोगे और उसका वजन करोगे और उसमें जितना भी पानी है उसका अलग से वजन करोगे, तो तुम लोग यू विल फाइंड कि 70% सेल का जो वजन है वो पानी का वजन है। ओके, और जो बचा हुआ 30% है वो खुद के सेल का वजन है। नेक्स्ट, ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स 90% वाटर। सो हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है जो हमारे पूरे बॉडी में सर्क्यूलेट हो रहा है उसमें भी 90% पानी है। सो पूरा जो फर्स्ट पॉइंट है क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा पानी है। ओके, फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब्स इवन इफ देयर इज अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। सो हमारी बॉडी और हमारे बॉडी के सेल्स का फंक्शंस जो है, अगर हमारे बॉडी में से थोड़ा सा भी पानी कम हो गया तो पूरा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, हेंस वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, एसेंशियल यानी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वी आर सीइंग फाइबर्स। सो फाइबर्स आर आल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। हमने पिछले स्लाइड में वाटर को एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोला था। सो नेक्स्ट स्लाइड में दे आर सीइंग fibers are also essential nutrients. Okay, we cannot digest fibers. This is interesting, right? हम लोग फाइबर्स को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, फिर भी बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। ऐसा क्यों? डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो उसको हम लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। सो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा उसको फाइबर्स को खा के, राइट? दैट्स अ क्वेश्चन दैट शुड हैव कम इन योर माइंड। सो उसके आगे क्या लिखा है? हाउएवर they help in digestion of other substances and egestion of undigested substances. egestion यानी बाहर फेंकना। ओके, egestion यानी बाहर फेंकना। क्या बाहर फेंकेगा? अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस। तो हमारे बॉडी में जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं और कुछ चीज है जो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो उसको अगर बॉडी के बाहर फेंकना है तो तुम लोग को फाइबर्स खाने पड़ेंगे। ओके, सो फाइबर खुद डाइजेस्ट नहीं होगा, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हम लोग, बट वो किस में हेल्प करने वाला है? हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्ट चीजें बच जाती है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करने वाला है। दैट्स व्हाई डॉक्टर्स विल ऑलवेज टेल अस कि अगर तुम लोग का पेट साफ नहीं हो रहा है देन ईट फ्रूट्स, और फ्रूट्स में से जो फाइबर होगा दैट विल हेल्प इन डाइजेशन। क्यों? क्योंकि अगर कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ठीक से हमारे पेट में तो फाइबर्स उसको बाहर फेंकने में हेल्प कर देंगे। और फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं हमें? फाइबर्स वी गेट फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स। ओके, इन मराठी दे विल से पाल्या भाज्या और ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक वगैरह। ओके, फ्रूट्स, सीरियल्स एटसेट्रा, तो इन सब चीजों में तुम लोग को फाइबर्स मिलेंगे। नेक्स्ट, देयर आर 3 क्वेश्चंस अंडर द हेडिंग ऑफ यूज योर ब्रेन पावर। ओके, इन सब के तुम लोग को रीजंस बताने हैं। 3 स्टेटमेंट्स दिए और इन 3 स्टेटमेंट्स के तुम लोग को रीजंस बताने हैं। These are given on your page number 17. So again, I'm going to wait for 5 seconds. I want you to pause the video and try to write the answers by yourself. Okay, and remember, if you're not trying to write the answers by yourself and you're not making mistakes, then you're not learning anything new. So make sure you're pausing the video and writing down the answers. बस सोचो मत आंसर के बारे में, अच्छा ये हो सकता है वो हो सकता है, write down the answers. Okay, so I'm waiting for 5 seconds for you to pause and write down answers to all 3 answers. Okay, I hope all of y'all have paused the video and have at least two points for each and every question given. Okay, उनके reasons लिखने थे. So now we are going to see the answers. First, many times we experience dryness in our mouth. हमारे मुंह में बहुत ज्यादा dryness आ जाता है. Okay, ऐसा क्यों होता है? Many times we experience dryness in mouth due to dehydration. ये dehydration क्या है? सो डी को हटा दो, डीई को, और सिर्फ हाइड्रेशन पढ़ो। ओके, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। सो हाइड्रा, ये वर्ड का मतलब क्या है? हाइड्रा यानी
इट इज रिलेटेड समथिंग रिलेटेड टू वाटर. ओके, हाइड्रा यानी समथिंग रिलेटेड टू वाटर. हम लोग ने टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पढ़ा था, राइट? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में भी क्या हो रहा था, वाटर वॉज बीइंग टेकन फ्रॉम अ रिजर्वायर और अ डैम, और उसको टर्बाइन पे फेंक रहे थे, तो पानी इन्वॉल्व था, राइट? इसलिए हाइड्रो ये वर्ड यूज किया था. सो यहाँ पे भी हाइड्रा का मतलब क्या है? वाटर. सो डिहाइड्रेशन मतलब क्या होगा? डिहाइड्रेशन यानी पानी नहीं है. ओके, सो डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में से पानी कम हो जाना. ओके, while running, walking, playing or other activities, our body loses water in the form of sweat. तो जब भी हम लोग भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में से जो कुछ भी पानी है वो चले जाने वाला है. किस फॉर्म में? स्वेट के फॉर्म में. पसीना. स्वेट यानी पसीना. ओके, सो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट वी आर गोइंग टू लूज वाटर फ्रॉम आवर बॉडी. नेक्स्ट पॉइंट. Thus, to maintain the water level in the body, we feel thirsty or experience dryness in the mouth. हमारे बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए हम लोग को प्यास लग जाती है. ओके, और प्यास लगती है तब हम लोग के माउथ में ड्राइनेस वाली फीलिंग आ जाती है. और ये क्यों आती है? एज अ सिग्नल टू कंज्यूम मोर वाटर. सो हमारे मुंह में अगर ड्राई फील होने लग गया, वील फील लाइक ड्रिंकिंग वाटर. और जैसे ही हम लोग को पानी पीने का मन करेगा, वील ड्रिंक वाटर, और वो ड्राइनेस चला जाएगा और बॉडी का जो वाटर लेवल है वो वापस इंक्रीज हो जाएगा. सो बेसिकली बॉडी इज गिविंग अस अ सिग्नल कि अगर तुम्हारा माउथ में ड्राइनेस वाली फील आ रही है तो पानी पी लो. सो इट्स अ फॉर्म ऑफ अ सिग्नल दैट आवर बॉडी इज गिविंग अस व्हेन आवर बॉडी का वाटर लेवल इज गोइंग डाउन. ओके, सो अगेन was it a difficult question? No, right? It was just very logical question. कोई नया नॉलेज यूज नहीं करना पड़ा तुम लोग को. So you all could have got this answer by yourself if you all had tried. Okay, और अगर तुम लोग ने ट्राई करके भी तुम लोग को गलत आंसर मिला, that's okay, you all learn, right? तुम लोग को पता चला कि तुम लोग को सही आंसर क्यों नहीं मिला. That's also learning. Okay, next question. Oral rehydration solution, which is sugar, salt and water, is frequently given to persons experiencing लूज मोशंस. ओके, सो जिसको भी लूज मोशंस होते हैं उसको क्या देते हैं हम लोग? ओरल रिहाइड्रेशन. अभी पहले हम लोग ने कौन सा वर्ड पढ़ा था? डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन यानी पानी का ऑपोजिट, यानी पानी नहीं होना. अभी रिहाइड्रेशन, री यानी वापस, राइट? री यानी रिपीट, री यानी वापस होना. सो रिहाइड्रेशन यानी वापस पानी का लेवल इंक्रीज करना बॉडी में. सो whenever you have loose motions, your body is going to lose lot of water, right? पानी बहुत ज्यादा बह जाता है और हमारे बॉडी का वाटर लेवल्स काफी डिक्रीज हो जाता है लूज मोशंस के दौरान. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रीहाइड्रेट. हम लोग रीहाइड्रेशन सोल्यूशन दे रहे हैं. रीहाइड्रेशन यानी पानी का लेवल वापस लेके आना. सो इसका रीजन क्या है? व्हाई डू वी गिव ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन? फर्स्ट पॉइंट, in loose motions or diarrhea, both are the same thing. Okay, loose motions or diarrhea. Diarrhea is a fancy name for loose motions. So in loose motions or diarrhea, body loses excess amount of fluids and salts. So सिर्फ पानी हमारी बॉडी लूज नहीं करती है लूज मोशन में, पानी के साथ बहुत सारे सॉल्ट्स भी चले जाते हैं हमारे जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. दिस कॉजेज डिहाइड्रेशन. सो इसकी वजह से हमारे बॉडी का पानी का वाटर लेवल डिक्रीजेस, which can be dangerous especially in case of children. So अगर पानी का लेवल कम हो गया बॉडी का, it is very dangerous for our body, और ये छोटे बच्चों के लिए और भी ज्यादा डेंजरस होता है. ओके, बिकॉज their body is still developing, right? उनकी बॉडी फुली डेवलप नहीं है, तो उनमें अगर ऐसा हो गया तो उनके लिए और भी ज्यादा खतरा हो जाता है. In such cases, the body can be rehydrated by given a solution containing salt and sugar. So अगर जब भी ऐसा होता है तो बॉडी को वापस हाइड्रेट कर सकते हैं. वापस हाइड्रेट करने को रीहाइड्रेट करना बोलते हैं. ओके, सो वापस हाइड्रेट कर सकते हैं और रीहाइड्रेट कर सकते हैं. क्या देके? सोल्यूशन. सोल्यूशन क्या है? इफ यू रिमेंबर सोल्यूशन, whenever you put solute in solvent, this is known as solution. Okay, when you put solute in solvent, it is known as solution. तो यहाँ पे salt and sugar तुम्हारे सल्यूट है एंड वाटर विल बी योर सॉल्वेंट. सो पानी में जब तुम लोग सॉल्ट और शुगर मिक्स कर दोगे, यू विल गेट द सोल्यूशन. और इसका एग्जांपल क्या दिया है? ओआरएस. तुम लोग ने सुना रहे एड्स, बहुत पहले इसके एड्स आते थे टीवी पे. तो इफ यू गो टू द मेडिकल स्टोर एंड यू आस्क फॉर ओआरएस, ओआरएस का पाउडर ले दो. सो ओआरएस का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स. ओके, या फिर ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन भी बोल सकते हो. ओके, so oral, what does the word mean? What does the word oral mean? If you remember, हम लोग
एक डायग्राम को लेबल कर रहे थे कुछ लर्निंग सेशंस, किसी लर्निंग सेशन में, और यहाँ पे जो कैविटी थी उसको हम लोग नेजल कैविटी बोल रहे थे. व्हाई? बिकॉज वट एवर इज रिलेटेड टू आवर नोज वी कॉल इट एज नेजल, और उसके नीचे ओरल कैविटी बोल रहे थे. व्हाई वर वी कॉलिंग दैट एज ओरल कैविटी? बिकॉज वट एवर इज रिलेटेड टू आवर माउथ वी कॉल इट एज ओरल. ओके, सो ओरल क्योंकि हम लोग पानी मुंह से पीने वाले, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओरल. ओके, रिहाइड्रेशन यानी वापस पानी देना, और उसमें सॉल्ट्स होते हैं तो it is called as ORS. Okay, we're going to move on to the next point. Drinking this solution helps to replace the fluids and essential salts lost due to diarrhea. अगर तुम लोग ये solution पी लोगे तो जो important fluids है और salts है जो तुम्हारे डायरिया की वजह से पूरे बॉडी से निकल गए थे वो वापस आ जाएंगे. ओके, रिप्लेस हो जाएंगे. Also sugar, which is glucose. Okay, glucose is a type of sugar, right? Enables the intestine to absorb the fluid and salts more efficiently. तो शुगर क्यों डालते हैं हम लोग, या फिर ग्लूकोज क्यों डालते हैं ओआरएस सोल्यूशन में? ताकि ग्लूकोज क्या करने वाला है, तुम्हारे इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करने वाला है सॉल्ट्स और पानी को. आई विल रिपीट दिस. what is sugar going to do? Sugar is going to help your intestine absorb water and salts अच्छे से. Okay, therefore oral rehydration solution, which is sugar, salt and water, is frequently given to persons experiencing loose motions. Okay, so this was your answer to the second question. Again, if you all would have tried it, तुम लोग को अगर लॉजिकली तुम लोग सोचते तो तुम लोग के दिमाग में आना चाहिए सॉल्ट और शुगर का क्या काम हो सकता है, और लूज मोशन, राइट? सो लूज मोशन में लूज सॉल्ट एंड शुगर, दैट इज व्हाई उसको वापस रिप्लेस करने के लिए शायद ये ओआरएस देते होंगे. यू कुड हैव थॉट दिस बाय योरसेल्फ, और अगर तुम लोग ने ये आंसर नहीं लिखा है, नाउ नो कि कैसे किस तरीके से सोचना था, and I have learned something. Okay, next, last question. We sweat during summer and heavy exercise. So very easy answer. During summer and heavy exercise our body temperature rises. हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, राइट, जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं. और बॉडी मेंटेन्स इट्स टेम्परेचर, मेंटेन करना यानी सेम टेम्परेचर रखना. ओके, बाय स्वेटिंग. स्वेटिंग यानी पसीना आना. सो पसीना आने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा. The sweat in turn evaporates and keeps our body cool. So जो कुछ भी पसीना आएगा हमारे बॉडी पे, that is going to get evaporated, right? And once it evaporates, हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ जाएगा. So अपना बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा. So that is the reason why we sweat during summer and heavy exercises. So it was again a very easy answer. You should have got this answer by yourself. So the new word we learned today is heterogeneous. Heterogeneous यानी बहुत अलग अलग होना. Okay, different or diverse. Any word can describe the meaning of this word. Okay, also don't forget to make sentence out of this word. Okay, मैंने एक sentence already तुम लोग को example दे दिया है. We have many heterogeneous groups in our classroom. So that is my sentence on the word heterogeneous. तुम लोग को खुद के sentences बनाने. Okay, that's it for this learning session. Hope you all understood this learning session, and I will see you all in the next learning session. So till then, see you guys. Bye and peace.